अच्छा तो लेट्स जल्दी से हम डिस्कस कर लें। जस्ट मैं मीटिंग डिसेबल कर दूं। दैट्स गुड। तो अच्छा लेट्स क्विकली फिनिश विद द ट्रीटमेंट। सो हमने दो ट्रीटमेंट डिस्कवर की थी। वन इज प्रोफिलैक्टिव और एंटिसिपेटरी, ताकि वी वांट के इंजरी के बाद सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस डेवलप ना हो। द सेकंड इज क्यूरेटिव। क्यूरेटिव में हमने डिस्कस की थी स्टीरॉइड्स। एक मैसेज आया था इन द लास्ट चैट, steroids are also given in prophylaxis. That's good, that's correct. So steroids are also used for prophylaxis. तो थोड़ा सा हम इसे कॉन्सेप्ट को लेके चले, हम ड्रग्स को ना याद रखें, हम प्रिंसिपल्स पे याद रखें, हमें ड्रग्स खुद आ जाएंगी। तो प्रोफिलैक्सिस में आप खुद देख रहे हैं कि इन दिस आई जिसमें डेवलप हो रहा है, और मतलब द इंजर्ड आई, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। एक तो इसमें यूवीआइटिस भी है, और सेकेंडली इसमें आइरिस प्रोलैप्स भी है, और एक पेनिट्रेटिंग इंजरी भी है। Main thing in our prophylaxis, in our anticipation, is that we want to treat the penetrating injury as soon as possible. That is the first thing we want to do. अब पेनिट्रेटिंग इंजरी की ट्रीटमेंट में आप देख लें सारा कुछ आ जाएगा, स्टीरॉइड्स आ जाएगा, सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाएगी, ऑल दैट स्टफ, टॉपिकल साइक्लोपेचिक्स, एंटीबायोटिक्स, वो सारा कुछ उसमें आ जाएगा। मेन प्रिंसिपल इज दैट ट्रीट द पेनिट्रेटिंग इंजरी as soon as possible, repair that wound ताकि डेवलप ना हो। तो ट्रीट द पेनिट्रेटिंग इंजरी as soon as possible, use steroids. अब इसमें एक और चीज आ जाती है कि if the penetrating injury is not repairable, जब हमने बात की थी ना लास्ट टाइम कि सर्जरी हम तब परफॉर्म करते हैं जब हम देखते हैं कि सर्जरी ज़्यादा डैमेज तो नहीं कर रही, मतलब is it helpful to the patient, is it beneficial, vision be restored, etc. Let's say that in our patient who has penetrating trauma, there is no chance of him having good vision with surgery. Say vision cannot be recovered. What should we do then? तब हम क्या कर सकते हैं? Yes, we can remove the eye. ठीक है? Again, injured eye, evisceration. So if we remove the eye, I think मेरी screen share हो रही है, मैंने जल्दी से book खोली हुई थी ताकि आप देख लें. So what we can do, we can remove the eye. Different text में different different लिखा हुआ है. कहते हैं. हाँ, depend करता है. मैं वही देख रहा था इन जो कि evisceration लिखा हुआ है, but if my screen is being shared right now in Kansky's, it says enucleation. तो enucleation और evisceration both can be done. enucleation और evisceration में फर्क क्या होता है? enucleation में we remove everything, optic nerve से पीछे कट कर देते हैं आई को, and then we pull the eyeball out completely. evisceration में हम क्या करते हैं? in evisceration we take a scoop और हम कॉर्निया से एंटर होते हैं आई के अंदर, and we scoop out everything inside the eye. जो कुछ आंख के अंदर है वो सारा कुछ बाहर निकाल दो। तो यानी कि कॉर्निया भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ स्क्लेरा रह जाएगा, और अंदर जितना कुछ भी था सारा कुछ बाहर आ गया। If the eye is not savable, if it cannot be saved, what we do? We can remove the eye via enucleation or evisceration. These are prophylactic and it's very important. ये चीजें अगर आप करेंगे तो the eye will be saved. These are very important because once sympathetic ophthalmitis develops, उसके बाद remove करने का कोई फायदा नहीं है. It's only a prophylactic treatment. जो अभी तक literature show करता है, that is कि if sympathetic ophthalmitis has developed, there is no use of performing an enucleation or evisceration afterwards. So it is imperative that we perform these steps. So let's say these steps have failed, patient has developed sympathetic ophthalmitis. Okay? So our patient has developed sympathetic ophthalmitis. What we will do? We will use steroids. Steroids inflammation कम करेंगे. If steroids do not work, what can we do then? Steroids अगर काम नहीं करते तो हम क्या कर सकते हैं?
इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे दें। Immunosuppressants, right? So immunosuppressants and steroids. If steroids do not work, immunosuppressants. So in a nutshell, this is the treatment of sympathetic ophthalmitis. Basically, क्या होता है sympathetic ophthalmitis? It is the development of uveitis. Which type of uveitis? Plastic cyclitis. Textbooks में लिखा है, पढ़ लीजिएगा. Plastic cyclitis in normal eye, and how it is developed? It develops in response to injury in the fellow eye. Most commonly किसमें होता है? Surgery या penetrating trauma. So that is why we need to quickly treat penetrating trauma. So what are the symptoms and signs? As it is uveitis, we will have the symptoms and signs of uveitis. Mutton fat KPs, iris के जो issues हैं uveitis में वो हो सकते हैं, choroiditis हो सकता है. Choroiditis में हमें Dehlen-Fuchs nodules नजर आएंगे, हमें क्या नजर आएगा? Serous retinal detachment कर सकती है. How can we treat this patient? The first thing is we want to prevent this. That is why all penetrating injuries are treated ASAP, as soon as possible. And if they have uveitis developed, तो उनमें भी आप cycloplegics, steroids और वो सारा कुछ आप करेंगे. तो यहाँ पे ये चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया था कि आई रिमूव करने का क्या फायदा है, इससे अच्छा है कि हम सूचेस लगा लें. तो सूचेस आप लगा लेंगे, बिल्कुल ठीक है, बट इन वही बात है कि इफ द विजन इज नॉट सेवेबल. लेट्स से आपके पास पेशेंट आया है एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ हिज आई. So you cannot suture this eye. And most likely the vision is not savable in such an eye. So what you will do, you will remove the eye. You will perform an evisceration or enucleation. ताकि दूसरी आंख बच जाए. Sutures लगाएंगे तो वो तो फिर immune reaction भी तो होता रहेगा ना sympathetic ophthalmitis में. हो जाता है. तब तक वो reaction भी होता रहेगा. मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया. Can you please repeat that? आवाज कट गई. भाई मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम लोग सिर्फ सूचर्स लगाते हैं तो हम लोग आई बॉल तो रिमूव नहीं कर रहे, तो वो तो फिर सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस वाला रिएक्शन तो होता रहेगा फिर. हाँ बिल्कुल होता रहेगा, बिल्कुल होता रहेगा. ठीक है. That penetrating trauma, which is the cause of the injury, which is exposing the normal antigens to the blood, that is the main cause. तो if we want to stop that, we want it to stop, ताकि उसी वजह से हम ट्रीटमेंट कहते हैं. इविसरेशन में हम कॉर्निया स्पेयर नहीं करते, स्क्लेरा स्पेयर करते हैं. तो इसकी मसलहत क्या है? आई एम सॉरी, आई डोंट नो. मुझे खुद नहीं पता कि इविसरेशन और इन्यूक्लिएशन की में प्रेफरेंस हम कब शो करते हैं, क्यों शो करते हैं. कॉस्मेटिक रीजंस भाई. आई थिंक बिल्कुल इविसरेशन में भी आई एम नॉट श्योर, लेकिन इम्प्लांट्स या जो प्रोस्थेसिस होते हैं आप दोनों तरह यूज कर सकते हैं. आई थिंक इन्यूक्लिएशन के बाद भी आप कर सकते हैं. इविसरेशन के बाद तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. टीनन्स कैप्सूल स्पेयर हो जाता है, तो जो प्रोस्थेसिस आप अंदर ऐड करते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आई की तरह मूव करता है. तो इविसरेशन का ये बिल्कुल बेनिफिट है, लेकिन ये इन्यूक्लिएशन में होता ही नहीं. पता, आई एम सॉरी, आई डोंट नो. अगर आपको पता है या किसी को पता लग जाता है तो जरूर बता दीजिएगा. तो कमिंग बैक, हो जाए एक बार स्टीरॉइड्स. बाकी यूवेइटिस है तो उसकी ट्रीटमेंट साइक्लोप्लेजिक्स भी आप ऐड करेंगे. मुझे लिख लेना चाहिए साइक्लोप्लेजिक्स ताकि आपको याद रहे. स्टीरॉइड्स, साइक्लोप्लेजिक्स, एंड इफ स्टीरॉइड्स डू नॉट वर्क, इम्यूनोसप्रेसेंट्स. पहले आप ऑरल स्टीरॉइड्स पे स्टार्ट करते हैं पेशेंट को. ऑरल स्टीरॉइड्स नहीं काम करते तो आईवी स्टीरॉइड्स पर आते हैं. आईवी स्टीरॉइड्स नहीं काम करते तो मतलब स्टीरॉइड्स हैव फेल्ड, एंड देन यू विल मूव टू immunosuppressants. Immunosuppressants include azathioprine, and this was sympathetic ophthalmitis. Sympathetic ophthalmitis penetrating trauma से रिलेट करता है. क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी है कि आपको पेशेंट मिलेगा sympathetic ophthalmitis का, वही होगा आई विल बी नॉर्मल. दूसरी आंख में इंजरी हुई है, उसकी वजह से ये एक रिएक्शन डेवलप हो गया. रिमेंबर द फाइंडिंग्स. तो नजर आता है ना नेकेड आई से विदाउट द स्लिट लैम्प. क्या चीज? आइरिस प्रोलैप्स, वो तो नजर आ जाता है ना. हाँ वैसे नजर आ जाता है बिल्कुल. अच्छा, स्टार्ट में मैं हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में कह रहा था, तो जिन्होंने सजेस्ट किया था दैट इज करेक्ट. इट्स अ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. रोगी में लिखा हुआ है टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का. तो मैंने तो सही मैंने कब रिलेट किया. तो यू वर राइट, इट्स अ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. So I think this should finish with this session. If you have any questions overall from this topic, sympathetic ophthalmitis, from chemical injuries, या
फ्रॉम ऑक्यूलर ट्रॉमा हो। कोई भी सवाल हो